دشمنان نبی کو بتا دیجئے، ہاتھ میں ان سبا کو ملا دیجئے، عصمتی ان کو تیور دکھا دیجئے، عصمتی ان کو تیور دکھا دیجئے، عصمتی ان کو تیور دکھا دیجئے، کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے، کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے، کان پہ رکھ کے گھوڑا دبا دیجئے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، دیکھیں، جب دل پہ مہر لگ جاتی ہے نا کسی کے، تو وہ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسے یہ خبیث بات کر رہا ہے۔ یہ محمد رضا کا چیلا چاپڑ ہے، اور حالانکہ بہت دن پہلے میں نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ سمجھ نہیں پایا اور اپنی زبان سے اس نے کفر بکا، اور ایک نہیں کئی بار بکا۔ تو میں اس سے بحث نہیں کرتا ہوں زیادہ، کیونکہ جاہلوں سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود منع فرمایا ہے۔ یہ ایک ہمارے بھائی تھے بیچ میں، انہوں نے مجھ سے زور زبردستی کی کہ نہیں بھائی ایک بار اس سے بات کرو، ایک بار اس سے بات کرو۔ چلے میں نے اس سے بات کی۔ اب آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں گے تو خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ کون جاہل، کتنا بڑا جاہل اور کتنے پائے درجے کا یہ جاہل ہے، کیونکہ جو اس کا محمد رضا استاد ہے نا وہی جاہل ہے، تو تعلیم جو دے گا تو جاہلانہ تعلیم ہی تو دے گا۔ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری شریف ہمارے لیے معتبر کتاب ہے، لیکن شیعہ کیا کرتے ہیں، وحید الزماں نے بخاری کی شرح لکھ کر کے دی شیعہ کو۔ تو شیعہ کی جو بخاری کی شرح ہے، یا شیعہ نے جو اپنے ادارے میں بخاری چھاپی ہے، اس میں فیر بدل کیا ہے اور بہت سے حدیثوں کو اپنے طریقے سے لیا ہے، تو ہم اس بخاری کو نہیں مانیں گے۔ اور ہمارے عالموں نے یہ کہا ہے کہ بخاری کے اندر شیعوں نے بہت طریقے کے فیر بدلاؤ کیے ہیں، تو فی الحال بخاری جو ہے ہمارے پاس جو اوریجنل ہے، اس کے علاوہ ہم شیعوں کی یا مسلک اہل حدیث نے بھی جو اپنے ادارے میں بخاری چھاپی ہے اس کے نیچے تشریح کی ہے، ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے۔ اس میں صحیح عبارت کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا، جیسے اسلام 360 جو ان کا اپلیکیشن ہے، اس میں سنن ابن ماجہ ہو یا بہت ساری حدیثوں کے ترجمے کو چینج کر دیا ہے، بہت ساری حدیثوں کے ترجمے کو چینج کر دیا، اپنے طریقے سے لیا ہے، تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم اوریجنل کتاب کی طرف جائیں گے۔ تو ہم اس کا انکار کرتے ہیں جو صحیح چیز کو غلط طریقے سے پیش کرے۔ اب اسی طریقے سے ہمارے علماء اکرام کا، ہمارے محدث کا یہ قول ہے کہ بہت سی عبارت معتبر کتاب میں غیر معتبر آ چکی ہے، ثابت لوگوں نے ڈال دی ہے۔ ابھی کیسے ڈالی گئی، کس طریقے سے ڈالی گئی اور کیسے چھاپا گیا، اس کے تعلق سے بھی ساری باتیں تفصیل سے موجود ہیں۔ تو ہم اس عبارت کو پہلے دیکھیں گے، اس کی تحقیق کریں گے، پھر اس کے اوپر کوئی فتویٰ دیں گے۔ تو ہمارے عالموں نے پہلے واضح کر دیا کہ جیسے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ایسی بہت ساری عبارت ہیں جو غیر معتبر عبارت غیر معتبر کتابوں میں آ گئی ہیں۔ تو اس کے تعلق سے ہمارا قول ہے کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے، کیونکہ ہر ایک چیز پر جیسے کسی نے کفر بولا یا کفر کیا، اس کے اوپر عالموں کا اجماع، عالموں کی محدثوں کی جماعت کا اجماع ہوتا ہے، اور یہی سرے سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ چاہے یہ ابن تیمیہ پر اگر کفر کا فتویٰ جو دیا گیا تھا اس کے اوپر اجماع مانگے تو موجود ہے، اور ان کے عالموں نے جو کفر بکا اس کے اوپر آج کی تاریخ میں اجماع موجود ہے۔ اس کے بعد جو پرانی کتابیں ہیں جو غیر معتبر عبارت معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر اجماع موجود ہے۔ تو امت کا سب سے بہترین نمونہ جو ہے وہ ہمارے محدث کا اجماع، ہمارے عالموں کا اجماع موجود ہے ہمارے سامنے۔ تو ہم حضور کی امت ہے، اگر ہمیں کوئی ایسی چیز ملتی ہے تو اللہ نے قرآن میں خود ارشاد فرمایا ہے، کسی کو علم والوں سے اگر جس کا علم تم کو نہ ہو تو ہم عالموں سے رابطہ کریں گے۔ اب دیکھیں اس جاہل کو جو تعلیم دے رہا ہے، میں اس جاہل سے بھی مخاطب ہو کے یہ کہتا ہوں، کیونکہ اس جاہل نے ابھی صدیق حسن بھوپالی کو کافر ثابت کرایا، وہ ریکارڈنگ موجود ہے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ اگر تو یہ ثابت کر دے کہ امام بخاری کو اس نے محدث تابعی لکھا ہے تو میں اس کو کافر بولوں گا، مان لوں گا، اور میں نے اسکین پہ لگا دیا، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آیا جاہل کا۔ تو ایسے ایسے جاہل پڑے جو اپنے عالموں کو ہی کافر ثابت کروا کے بھاگتے ہیں۔ تو دیکھیے اس نے صدیق حسن بھوپالی کو کافر ثابت کروایا، ابھی جاہل نے نصیر حسین دہلوی کو کافر بول دیا۔ تو دونوں چیلے استاد نے پوری اہل حدیث کی ٹیم کو کافر ثابت کر دیا۔ تو معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ریکارڈنگ ڈالنے کا صرف ایک طریقہ، لوگوں کو، عوام کو بتانا مجھے یہ ہے
कि पहली चीज़ तो ये कि इस तरीके के पाए दर्जे के जो जाहिल घूम रहे हैं इनसे बच के रहें, अपने अहबाब को बचाएं, दोस्तों को बचाएं और इस रिकॉर्डिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस रिकॉर्डिंग में अगर कोई मेरी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकले हों तो दरगुजर फरमाएं और मुझे माफ़ करें। तो दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हमारी एक शर्त है। जी बोलिए। आपका जो भी सवाल होगा या जो भी आपका दावा होगा उस दावे पे दलील पेश करनी पड़ेगी आपको। जी मेरा दलील, जब दलील आप पेश करेंगे तो कुरान की आयत पढ़ेंगे, हदीस मुतवातिर पढ़ेंगे, जी ठीक है, और उसके बाद आप दावा रखेंगे कि इस दावे से ऐसा ही बनता है। जी, हम आपसे ऐसा कोई सवाल नहीं करेंगे जिसको आप फॉलो ना करते हो। बात सवाल जवाब की नहीं हो रही है ना, जी बात कुरान की हो रही है। कुरान कहता है जाहिलों से बहस मत करो, तो जी कुरान के खिलाफ थोड़ी मैं जा सकता हूँ। जी, तुमसे पहले कब नहीं बोल रहे ना। अब आपको सुनो तो सामने वाले की बात को कम से कम वजन होना चाहिए ना, उसके पास जी, जी। दलील होनी चाहिए कुरान हदीस पे, जो जी। वो दावा कर रहा है कि ये मेरा दावा है और ये मेरा अकीदा है। जी दावे पे दलील होनी चाहिए। हम पेश करेंगे, अब आप आयत हम पेश करेंगे, अकीदा आपको साबित करना है बस। अगर आप सच्चे हो मैं तो। पूछ रहा हूँ, मैंने क्या बोला आपको? जी। आयत पेश करोगे, उसका अरबी मतन पढ़ोगे, उसकी तफसीर फिर करोगे। वही बात, आपको मालूम है नहीं हो रही। जब तुमको अरबी नहीं आती तो बहस करने क्यों आते हो तुम? अच्छा, तो आप उसी को सिखाएंगे जिसको अरबी आती है। बिल्कुल, कुरान ने कहा है कि जाहिलों से बहस करो। अच्छा, जाहिल से मुराद क्या है? जाहिल से मुराद जिसको इल्म ना हो, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म तुम पर फर्ज है। पहले बात, इल्म किसका ना हो? इल्म सीखना, कुरान में किसका या फिर इल्म मैं क्या सीखना पूछ रहा हूँ? तुम्हारे लिए फर्ज है। जमशेद भाई मैं क्या पूछ रहा हूँ? फर्ज से महरूम क्या हो। जाहिल को होता है कि कुरान में क्या? अरे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। जाहिल से मुराद क्या? जो कुरान में जिसके बारे में ना जानता वो जाहिल है। तो और क्या? तो ऐसे तो कितने साहबा जो पूरा कुरान नहीं जानते थे, वो सीख ही रहे थे, जाहिल थे। मैंने तुमको फिट किया है। एक मिनट रुक जाओ, कितने साहबा ऐसे थे जो जाहिल की तरह? एक का नाम बताओ तो। क्यों, साहबा सारे पढ़े हुए थे क्या? हाँ तो नाम बताओ ना। तुमने दावा पेश किया, दावे पे दलील तुम दोगे, मैं थोड़ी दूंगा। नहीं तो इसके हम तहकीकात आपको देंगे, पूरे चेक देंगे आपको कि साहबा के नाम ही बताएं कि साहबा कौन कौन साहबा ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि वो साहबा जाहिल थे और उस पर कॉल पेश करना पड़ेगा। अरे उन्हें मालूम नहीं था ना, सीख रहे थे वो, और तुमने कहा कि सीखने में सीखना अलग चीज हम भी सीख रहे हैं ना, हम भी सीख रहे हैं। तुम्हारा क्या है कि तुमने कहा कि कुरान जिसका जिसे इल्म नहीं है वो जाहिल है, तो बहुत सारे मैं रेफरेंस देता हूँ। मैं क्या पूछ रहा हूँ, कुरान कहता है ऐ ईमान वालों जाहिलों से बहस मत करो। दूसरी बात कहता है कुरान सूरह अंबिया में कि ऐ ईमान वालों इल्म वालों से सीखो जो इल्म जानते हैं। अच्छा, तो तुमने फर्ज, और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इल्म सीखना, दीन सीखना हर इंसान के ऊपर वाजिब है और फर्ज है। हाँ फर्ज है। तो तुम कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? माशाल्लाह हमारी उम्र 28 है। 28 साल तुमको हो गए, अभी तक तुम दीन नहीं सीखे, लाना तो तुम। अच्छा, तो अल्लाह के रसूल अगर ये इसका इनकार करने वाला, अगर ये लानत फरमाया क्या बोल रहा हूँ, दीन सीखना हर मुसलमान को। अगर ये लानत अगर मुझ पर वाजिब है तो यही लानत मुझे अक्सरियत पर लाजिम है। मुझे दिखाओगे तुम दिखाओगे कि किस सहाबी ने 28 साल की उम्र उनकी हो गई थी और चलिए किस समझे सहाबी ने अरे मेरी बात सुने ना, साहबा को। हाँ ये याद रखना आपने क्या बोला है। साहबा को आपको कितनी साहबा है, कौन से बीच में मालूम नहीं कि कौन से साहबा सीख रहे थे, कौन से साहबा नहीं जानते थे। बात नहीं हो रही है, सीखने की बात अलग हो रही है। पढ़ने की बात की ना, तो हम कहते हैं ना कितने साहबा कुरान नहीं जानते थे, पढ़ना नहीं जानते। अरबी जानते थे, अरबी बोलते थे तो उनको कुरान नहीं आएगा अगर वो देखेंगे कुरान के बारे में। हाँ, जब उनके सामने आयत पेश की जाएगी तो वो आयत को मिसल बाद में पेश करेंगे ना, अरबी से ना वो। तो एक फकीर और ले जाओ, कल ये टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तुमने ये कहा और ले जाओ, अल्लाह के रसूल भी अरबी नहीं जानता, ना उन्हें पढ़ना आता था, उम्मी थे आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अरबी पढ़ना नहीं आता था तो आपने जुबान से अरबी बोली कैसे? बोलना अलग है, पढ़ना अलग है, जाहिल इंसान। अच्छा, तो तुमने ये कहा कि अल्लाह के रसूल को अरबी पढ़ना नहीं आता था। पढ़ना अलग है, बोलना अलग है। और अल्लाह के रसूल भी जाहिल थे। अच्छा एक बात बता, यहाँ पर लोग हिंदी जानते हैं,
मैं क्या बोल रहा हूँ? कितने लोग जाहिल है? अल्लाह के मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्लाह के रसूल जाहिल थे। ये उसूल तुम पर फिट हो रहा है ना, जो जानते हो जाहिल अल्लाह है। के रसूल जाहिल थे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पढ़ा नहीं है, जो जानते हो जाहिल है ना, तुम्हारे मतलब में जाहिल थे। अल्लाह के रसूल तुम्हारे थे। अल्लाह के उसूल पढ़े हुए नहीं थे। माना तो तुम पर जाहिल की औलाद हो। अबे जिसने सहाबा को पढ़ाया उसूल से बात क्यों? उसूल से कौन सा उसूल का है ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको समझ नहीं है, वो जाहिल है। अरे तो नबी भी उम्मीद है। रसूल खुद फरमा रहे हैं कि दीन सीखना तुम्हारे लिए फर्ज है और हुजूर बेशक अगर हम बता रहे हैं आपको कितने साहबा आपको ऐसे बताएंगे तो नहीं है। कुरान लेकिन हदीसों के बारे में नहीं मालूम कितने साहबी ऐसी हैं। तो एक का नाम बता दो। कल की तरह पेश कर दूं, लेकिन वो हदीस अभी मेरे पास मौजूद नहीं है। हजरत मैं ही कह रहा हूँ कि जो इनका मौजूद है ना, सुनो सुनो, कुरान कहता है रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, अल्लाह ने अल्लाह के रसूल को रहमान ने कुरान सिखा दिया। ये कहता जाहिल है माज़अल्लाह तकफिरुन। अच्छा मतलब सारे साहबा को कुरान सिखा दिया। रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह ने रहमान ने कुरान सिखाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इंसान की जान को। कुरान के आने से पहले क्या थे? जाहिल है। कुरान के आने से पहले क्या थे? कुरान पढ़े, कुरान नाजिल भी नहीं हुआ। मेरा नबी तमाम कायनात का, सुन में जाहिल, मेरा नबी तमाम कायनात का नबी था। और उम्मी का माना होता है किसी से ना पढ़ा हुआ, उम्मी का माना जाहिल नहीं होता, जाके लोग देख ले। अच्छा तो तुम कहना चाहते हो नबी अलैहिस्सलाम कुरान नाजिल होने से पहले पढ़े हुए थे, तो जाहिल कहना चाहते हो? तो कुरान में तो आए थे, इनकार होगा ना। कुरान में तो आए थे, कुरान की आयत का इनकार होगा ना। ये काफिर एतराज करते अगर ये कुरान तुमने खुद से लिखा होता। तुम इससे पहले पढ़ना लिखना जानते ही नहीं थे। हम तो जाहिल के बच्चे खुद से पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अच्छा अल्लाह क्या था तो सीख गए? ये काफिर मिलेगा मुझे जरा बता जरा। कुरान में फरमा रहा है ना अल्लाह रहमान, अल्लाह क्या था रहमान अल्लाह जिससे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, अल्लाह की अता से पढ़ना लिखना सीखे। तो मुझे दलील पेश करके अल्लाह के रसूल पढ़ना लिखना नहीं जानती, ये किसका कौल है? तुमने तो दलील पेश करते रहो ना कुरान की। कुरान में है क्या? ये अब तो तुम्हें इसी तो बात है कि तुम तस्वीर तेरा कौन मानेगा? तू है तो दिन में कुरान से पढ़े। बिल्कुल शाबाश भाई, कुरान से बड़ी तफसीर कुरान समझ ही तफसीर में जाएगी तेरे में से जाएगी। तफसीर में इख्तिलाफ है, यानी कुरान में इख्तिलाफ है। फिर अरे जमशेद कुरान में इख्तिलाफ नहीं है, तफसीर में इख्तिलाफ भी नहीं है ना। कुरान में इख्तिलाफ है। तेरे लिए तो तफसीर मुतबर है ना, कुरान में तेरे लिए मुतबर है नहीं तो नबी खुद का। तेरे लिए तफसीर मुतबर नहीं है। नहीं अच्छा तेरे लिए तफसीर मुतबर नहीं है, पक्का ना? अच्छा पक्का ना? पक्का चल ठीक है। कुरान के अंदर एक दिन में कितनी नमाजें हैं? अब तो हदीस में आएगा ना। मैं तुझसे क्या पूछा हूँ? कुरान की बात कर रही है ना, तफसीर का इनकार किया आपने अभी। तूने कुरान की तफसीर हदीस है। अरे हदीस की बात ही चल रही। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कुरान की हदीस है। मैंने क्या पूछा तेरे से? मैं क्या पूछा? कुरान की जो आयत नाज़िल हुई, चल तू मुझे बोला ना क्या कुरान की तफसीर हदीस है? सुनो भाईजान, रहू भाई जी जी जी, इसने बोला नमाज का जिक्र हदीस में आया, इसने बोला ना। हाँ बिल्कुल बोला है। मैं इसको कयामत तक का टाइम देता हूँ। नमाज के अंदर जोहर की 12 रिकात है। मैं 5 वक्त की बात कर रहा हूँ। मैं 5 वक्त की नमाज साबित करके दिखा हदीस में। अच्छा ठीक है, तो तेरा ये 5 वक्त की नमाज होना चाहिए किसे? जोहर की 12 रिकात, फजर की 5 वक्त की नमाज, मगरिब की 7 रिकात। मैं क्या पूछा तुमसे? हाँ, हदीस के अंदर जोहर की 12 रिकात। मैं तुझसे पहले मैं तुझसे क्या कह रहा हूँ, तुमने नमाज पढ़ना कैसे सीखा है? तफसीर से बुजुर्गों के बच्चे हैं। तो तफसीर किसे कहते हैं? हदीसों पे नहीं सीखा ना। क्या पता, हदीसों में तो है ही नहीं नमाज का मुकम्मल तरीका। अच्छा यानी हदीस अलग है और तफसीर अलग है। और अभी ये क्या कह रहा था? नमाज अरकान नमाज तो है ही नहीं हदीस के अंदर। अच्छा अरकान नमाज किसी हदीस में नहीं है? नहीं है कुरान हदीस में ही अरकान नमाज। अगर तुम्हें तो अपनी शिकायत लिख के दे दूंगा, नहीं तो तू ठीक है कल इसी समझे नहीं, आप मेरी बात सुने। आपने इतनी देर गाड़ी रोकी ना, साबित कर दिया हदीस है कि नबी सलाम में कितने रकातें पढ़ी हैं। फिर अपनी शिकायत मांगेगा। जी 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 मानना सिर्फ अपने बातिल तरीके से तौबा कर लेना। अब इसको खामोश करो, मैं बोलूँ। शाबाश भाई, मैंने एक मिनट हो गया। अगर इसमें मुझे कुरान और हदीस से जोहर की 12 रिकात, मगरिब की 7 रिकात,
जी ईशा की 17 रकात जी। और नमाज के पूरे अरकान। अच्छा ठीक है। जी जी नमाज के पूरे निज़ाम के अंदर ध्यान से सुन लो, पूरे अरकान जी जी समाज में और वाजिब और सुन्नत। जी। अगर इसने कुरान हदीस से मुकम्मल ये साबित कर दिया, मेरी बात क्या बिल्कुल बिल्कुल हाँ। नमाज़े अज़ान रकात शामिल होनी चाहिए, जोहर की 12, फजर की 4, मगरिब की 7, ईशा की 17। जी अगर इसने साबित कर दिया, खुदा की कसम शिकस्त के दूंगा, नहीं तो इसको कह दो कि ये अपने आप को तौबा करेगा अहले हदीस से और सुन्नी हंदी बरेलवी बनेगा, कि अल्लाह की कसम खा के बुलवा दो। शाबाश भाई, देखो ईमान का मसला है, अपनी गिरेबाजी नहीं चलना अल्लाह चाहिए की चीज में। कसम खा के बोलो। मेरी भी तो सुनने जरा हाँ सुनाया जी, सुनाया पहले अभी आपसे बोले थे आप सुनाए। पहले मैंने तो दावा किया वो सुनो। दिमागी दलील आ गया। इजमा पे क्यों आए आप? साबित है ना। नहीं अभी से तो साबित नहीं है। तफसीर नहीं है। अरे तफसीर पे इजमा है। तो गधे की औलाद कहीं के तफसीर पे इजमा नहीं है। अरे तफसीर पे इजमा, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। अरे तफसीर पे इजमा है क्या? कितनी तफसीर जानता है तू? मैं क्या पूछ रहा हूँ? हर एक तफसीर पे इजमा की तरह जानता है तू? कितनी तफसीर जानता है तू? मैं कितनी में जानता हूँ, हर एक तफसीर पे इजमा की तफसीर जानता है। पहले क्या पूछ रहा हूँ मैं? मेरी छोड़ में कितनी जानता हूँ? हाँ जी हजरत, ये जाहिलों की जमात की जब से कोई इजमा पर आ गया ये। अभी जैसे मैंने मालूम है मेरे को, इजमा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो हदीस इनको ये नहीं मालूम है, इस जाहिल को ये नहीं मालूम है शिक्षा में और कुरान के अंदर नमाज के पूरे अरकान है ही नहीं। नमाज के अरकान हमें मुहद्दिस की जमात में दिए हैं। बिल्कुल सही बात है। इसको कहते हैं इजमा। और ये तफसीर की बात कर रहा है, जाहिल के बच्चे कुरान को बिना तफसीर के तू समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा कितनी आयतें मुतशाबिहात है कुरान के अंदर? हो गया तुम्हारा? कितनी की आयतें एक मौका में एक मुतशाबिहात, कितनी आयतें हैं मुतशाबिहात को साबित कर? हो गया तुम्हारा? हाँ हो गया। साबित कर कितनी आयतें मुतशाबिहात। मैं बोलूँ? हाँ बोल। हाँ बोलो शाबाश भाई। कुरान में कितनी मुतशाबिहात आयतें कितने मौका में? ठीक है बताओ। इल्म तो नहीं है मुझे। जब नहीं है तो कहाँ से सीखेगा? हदीसों से नहीं मिलता। हदीसों में मिलता है तो मुतशाबिह और मुहकम। कौन सी हदीस है बता देना। अबे तो रिजल्ट को देखा जाएगा ना। खुद मौजूद है कुरान के अंदर, खुद मौजूद है। सूरे आले इमरान आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में 2 किस्म की आयत है, एक मुहकम एक मुतशाबिहात। और जिसके दिल में कुछ बीमारी होती है ना, वो मुतशाबिहात के पीछे पड़ के गुमराह हो जाते हैं, अकीदा बनाते हैं। तो अकीदा बनाते हैं। बता रहा हूँ उसको जो बता रहा हूँ, खामोश हो जा बता रहा हूँ। अच्छा उसके बाद आगे अल्लाह ताला फरमाता है इसका असल हकीकी जानकार अल्लाह ही है मुतशाबिहात का। लेकिन अल्लाह ने दिमाग वाले जो इल्म रखते हैं दिमाग वाले उनको दिया है। मुतशाबिहात से अकीदा बनाना हराम। जैसे कुरान के अंदर आयत है यदुल्लाह फौक़ अयदीहिम, अल्लाह के हाथ। तो हम ये अकीदा नहीं रख सकते कि अल्लाह के हाथ है, ये आयत मुतशाबिहात है। अब क्यों नहीं समझ सकती? अंदर इसका जवाब है। उसका मतलब तुम समझते हो मुतशाबिह जो आयत तुमने जिक्र किया है, क्या मुतशाबिह अकीदा बनाना हराम है? क्या तुम समझ सकती हो क्या? उसका मतलब हमें मुहद्दिस समझाएंगे, हदीसों की जमात समझाएंगे। अल्लाह तो कह रहा है कि मुतशाबिह आयत की असल मतलब अल्लाह ही जानता और कोई नहीं जानता। ये भी तो कहा है ना कि दिमाग वालों को दिया है मैंने। अल्लाह ताला सूरह अंबिया में फरमा रहा है ना कि मुतशाबिह जानता हूँ। मुतशाबिह असल बोलना सीख ले। बोलना तो आता नहीं है, बहस करता है। मुतशाबिहात आयत लेके आओ कि उनकी मुराद मुहद्दिसीन जानते हैं कि हमने उसको दिमाग दिया। कौन जो मैं तेरे सामने पेश करूंगा? तू है कौन? ओ शाबाश भाई, तू बहस करने आया है तो तू मुझे बताएगा तूने 2 चीज का इनकार किया और इनकार करके तू काफिर हो गया। एक तूने तफसीर का इनकार किया, मैं तफसीर हो जाता है, बिल्कुल काफिर हो जाएगा। अच्छा तो इजमा का इनकार करने वाला काफिर है, इजमा का इनकार करने वाला काफिर है। अच्छा तो पहले इजमा का इनकार किया, बिल्कुल इनकार किया तूने, तफसीर का इनकार किया। तो मैं हर तफसीर की बात कर रहा हूँ, मैं हर तफसीर की बात कर रहा हूँ। हर तू कौन सी तफसीर मानता है बता? हर तफसीर में तुझे अभी तक गिरा कर तफसीर मानता है। देख लो जाहिलों से बात नहीं करता हूँ। सही बात है, सही। मैं जाहिलों से मैं इसीलिए बात नहीं करता हूँ। देखो बात तरीके से अब देखो सूरे अल्लाह ताला खुद कुरान सूरह अंबिया में इरशाद फरमा रहा है किसी को उससे जो इल्म जानते इल्म वाले हों,
جی جی اب یہ جی کہہ رہا ہے علم والوں کو پتہ متشابہات تو قرآن جھوٹا ہو جائے گا پھر. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. علم والوں کو جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں قرآن کی تفسیر جیسے تفسیر مدارک، تفسیر جلالین، تفسیر ابن کثیر بھی ہے، تفسیر بیضاوی بھی ہے، تفسیر ابن عباس بھی ہے. یہ ساری جو تفسیر ہے اس کے اوپر مکمل محدث کا اجماع ہے. ہاں بات جماعت کا تفسیر ابن کثیر کو مانتے ہو؟ تفسیر ابن کثیر کو جب سے ہم نہیں مانتے، جب سے وہابیوں نے اس کو اپنے ادارے میں چھاپ کے پھر بدل کر دیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں تفسیر اجماع، تفسیر میں اختلاف ہے. پہلے تھا اس پہ اجماع، پہلے پہلے بات سن. ہمارے پاس جو اوریجنل ابن کثیر، جیسے مثال دیتا ہوں تیرے کو، بخاری شریف ابھی ہمارے پاس موجود ہے اوریجنل. کل کو اس بخاری کو وحید کیا ہے کہ پہلے اب نہیں بات پوری کہتا ہے. پہلے انہوں نے کیا فرمایا؟ میں نے یہ بات ہی نہیں کی کہ اجماع سن ہی نہیں رہے بات. سن لینا، تو نے کہا کہ پہلے اجماع تھا. ارے تو انہوں نے بات تو سنی پوری، آپ پوری بات سنو. آپ انہوں نے کہا کیا ہے؟ اور اب بھائی سنو، جی جی جیسے بخاری کی اوریجنل کتابیں ہمارے پاس موجود ہے، بخاری کی 8 جلد ہمارے پاس موجود جی ہے. جی یہی بخاری وحید الزمان نے شیعہ کو لکھ کر کے دی ہے. جی اب شیعہ کے بعد جو بخاری کی حدیث ہے اس میں کئی حدیثوں میں فیر بدل کر دیا ہے اس نے. بالکل بالکل اگر شیعہ ہمارے پاس بخاری کی حدیث پیش کرے گا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. بالکل نہیں جو مانیں ہمارے گے. پاس بخاری ہے ہم اس کو مانیں گے. اسی طریقے سے جو ابن کثیر ہمارے پاس ہے ہم اس کو مانیں گے. جو وہابی کے اداروں سے چھپ کے آئے گی ہم اس کو نہیں بالکل مانیں گے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. ابن کثیر کون تھا؟ ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد تھا، ابن تیمیہ کا مقلد تھا وہ. اب تم تو سب کافر مانتے تھے. ابن تیمیہ وہ ابن کثیر کو کس عالم نے اپنی تفسیر کو ہمارے تم جنتی مانتے ہو؟ ارے شاباش بھائی، شاباش بھائی، او شاباش بھائی، اس کے شاگرد نے توبہ کر لی تھی. او شاباش بھائی، شاباش بھائی. رسالہ دکھاتا ہوں سن. جی اس کا رسالہ سن. الوداع والنہایہ میں ابن کثیر نے ایک رسالہ لکھا ہے. تجھے پتا ہے الوداع والنہایہ 17 جلدوں کی کتاب ہے. ایک جلد سے تو مخاطب نہیں ہوگا. 16ویں جلد میں اس نے ایک رسالہ لکھا کہ میں غلطی سے ابن تیمیہ کو فالو کر رہا تھا. جب مجھے یہ پتا لگا کہ ابن تیمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے منہ ہے، ہاتھ ہے، کان ہے، ناک ہے، پیر ہے، اس سے میں نے رجوع کیا اور اس سے میں نے توبہ کیا. الحمدللہ سنی سعید العقیدہ اور امام تابعی کا میں تابعی ہو گیا. اب میری بات، ابن کثیر کا ایک بھی عقیدہ کفریہ نہیں ہے. اچھا، ایک بھی عقیدہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے جو ابن تیمیہ کا عقیدہ تھا وہ ابن کثیر کا ہے، اس کو نہیں دوں گا. یعنی اب تم اسے بزرگ مانتے ہو نا، پھر ہم اسی تحقیق کر کے بتائیے. تو ہم نے کبھی اس کی تفسیر کی نہیں. اچھا بزرگ مان رہے ہو نا. تفسیر تو ابن کثیر کی ہم نے ابن کثیر کی تبھی تفسیر کی. ہماری کسی عالم نے لکھا ابن کثیر تو بزرگ مانتے ہو نا. اب ہم تمہارے اس بزرگوں کو بھی ننگا کریں گے انشاءاللہ. اچھا مطلب ابن کثیر کو بھی تو ننگا کرے گا؟ بے شک. اگر تم اسے اپنا بزرگ مان رہے ہو. استغفر اللہ. میری بات سن. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بالکل صاف ہو گیا کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو جاہلوں سے بحث نہ کرو. کیوں؟ بالکل صحیح بات. کیونکہ وہ تو تمہارے بزرگوں کو اور تمہارے خدا کو برا بھلا بولے گا اور وہ بولنے میں نے تم سے کہنے کہا کہ جاہلوں سے مراد کیا ہے. تو نے حدیث شاید نہیں سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں سے تبرہ کرنا، جنگ کرنا، اللہ سے جنگ کرنا ہے. بولا تمہارے بزرگ وہ ولیوں سے، وہ ولی کون ہے؟ ان سے مراد کون ہے ولی؟ بتائیں ذرا. جو یہ کہے پر اجماع قائم ہے اس کو تو ولی مانے گا یا نہیں مانے گا؟ جو یہ کہے لواء عامر لواء محمد، وہ ولی تمہارے نظر میں کون کہ؟ تمہارے بعض بشتامی نے خود کہا ہے لواء عامر لواء محمد، میرا جھنڈا قیامت میں نبی کے جھنڈے پہنچا ہوگا. وہ تمہارے لیے ولی ہے. قرآن ان کو ولی مانتے ہیں. میری بات کو سنو. ہاں، جو تم نے ابھی با یزید گستامی رحمۃ اللہ علیہ پہ بہتان باندھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. پہلے بات سنو. اگر میں تمہیں یہ پیش کر میں کیا پوچھ رہا ہوں تمہیں نے اگر یہ ثابت کر دیا یہ با یزید گستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور اس پر تم نے امت کا اجماع دکھا دیا اس کتاب پر، اس عبارت پر، تو میں تمہاری غلامی کس کا اجماع ہوتا ہے؟ جاہل کا بچہ، گدھے کی اولاد. گستاخی پہ تو اجماع ہوتا ہے امت کا. اچھا گستاخی کا اجماع ہوتا ہے. اور کیا، اگر کفر کرے گا تو اس کو علماء کی جماعت کفر کا فتویٰ دیتی ہے نا. اچھا گدھے کے بچے کا تجھے اتنا علم نہیں ہے، ڈھیلے کا تیرا کیا سکھاتا ہے تم کو؟ تو اس کا تو گدھے کی اولاد
उनके मुंह से अल्लाह बोलता था। इमाम बुखारी ने हदीस लिखी, भाई ध्यान देना, इमाम बुखारी ने हदीस लिखी। अच्छा, हदीस पर मुहद्दिस का इजमा हुआ कि हाँ ये बुखारी की सारी हदीस सही, हमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। जी अगर इमाम बुखारी की हदीसों पर मुहद्दिस का इजमा नहीं होता तो हम मानते उसको नहीं, सही बात नहीं है। मानते। तो किसी के ऊपर किसी ने अगर अपनी जुबान से कुफ्र कहा, जैसे इब्न तैमिया ने अपनी किताब सिरातल अल मुस्तकीम में खुदा के हाथ पैर मुंह लिखे, उस पर पूरे मुहद्दिस ने कुफ्र का फतवा दिया। सही बात। कुफ्र का फतवा देने के बाद उसको कैद कर दिया। तो इस पर हमें ये पता लग गया, हाँ भाई इतने उलमा की जमात ने इसके ऊपर कुफ्र का फतवा दिया, इसने ये हरकत की थी, तो हो गई बात, इजमा साबित हो गया। सही है। अब कुरान हमारे पास जो पहुंचा, तो कुरान अल्लाह की किताब है, हमें किसने बताया? इजमा ने बताया, इजमा से बताया, इजमा से हमारे पास आया। अगर इजमा ये ना कहती कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो कोई मानता ही नहीं। सही बात है। हो गया। तो इजमा जो होता है, सुन, तीसरी कड़ी जो इस्लाम की है, जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसको कहते हैं सबसे जरूरी, वो इजमा है। तो इजमा से पता लगता है कि ये किताब और ये जो कुफरिया इबारत है, इस पर कुफर का फतवा या ये इबारत से भाई अजीज गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पे कुफर का फतवा लगाया गया। क्योंकि क्या भाई अजीज गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में आलिम नहीं थे, सब जाहिल थे क्या? अगर भाई अजीज गुस्तामी ने इस किताब में अगर ये लिखा है तो क्या किताबें पढ़ी नहीं आलिम ने? तो ये जो मैंने अभी बताया कि भाई गुस्तामी कहा करते थे कि बताया मत में गुस्सा की है या नहीं, आप क्या करोगे? आला हजरत ने फतावा रिजिया के अंदर एक इबारत लिखी है कि बहुत सी इबारत जो सही किताबों में गलत मंसूब की गई है, उस इबारत को किसी भी मुहद्दिस की जमात ने सही नहीं कहा है। तो अगर ऐसी इबारत तुम्हारे सामने आए तो उससे मुहद्दिस की जमात का इजमा मांगो और उस पर फतवा मांगो। अगर वो ना पेश कर सके तो लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत हो। किसी के ऊपर कुफर का हुक्म लगाने से पहले, उसके ऊपर कुफर का हुक्म लगाने से पहले आलिमों का, मुहद्दिस का इजमा होना चाहिए। अकेले एक वाहिद इंसान से किसी के कुफर का फतवा नहीं लगता। सही बात है। अच्छा, गलत होने के लिए इजमा होना चाहिए, सही होने के लिए भी इजमा होना चाहिए ना? सही होने के लिए भी इजमा होना चाहिए। ठीक है। तो कौन सी चीज सही? बायज़ीद बस्तामी ने लिवाए आमिन मेरा नाम लेना, मेरा झंडा नबी के झंडे से होगा, इस पर इजमा आइए, कहिए, दलील दे। अरे जमशेद, अरे शाबाश भाई, ओ शाबाश भाई, पहले नाम ले ढंग से। शाबाश भाई, इसका ओ शाबाश भाई, बायज़ीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। शाबाश भाई, वो तुम्हारे लिए होंगे। नहीं, तुम्हारे लिए भी है। मैं अगर अभी तुम्हारे सामने यार शाबाश भाई, मेरी बात सुनो। खोलूंगा ना, ओ शाबाश भाई, शाबाश भाई, किताब पढ़ी है? अब मेरी बात सुनो आप। किताब पढ़ी है? मैं ही कह रहा हूँ आपसे, तारीख अहले हदीस किताब पढ़ी है? नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी। तारीख अहले हदीस किताब के अंदर जब तारीख अहले हदीस किताब लिखी जा रही थी, तो तुम्हारे नजीर हुसैन देहलवी, अब नजीर हुसैन देहलवी को ने जाके अपने अहमद रजा से पूछ लियो। नजीर हुसैन देहलवी लिखते हैं कि 15 वलियों के नाम मैं जो तुमको दे के जा रहा हूँ, लिख करके जा रहा हूँ, इनके ऊपर अपनी जुबान खोलने से पहले, तबर्रा करने से पहले अपनी आखिरत के बारे में सोच लेना। अच्छा, पहला नाम हजरत शेख जुनैद बगदादी, दूसरा का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, तीसरा नाम तीसरा नाम अल्लामा अल्फसानी, चौथा नाम बायज़ीद गुस्तामी, छठा नाम मोइनुद्दीन चिश्ती, सातवां नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, आठवां नाम निजामुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा निजामुद्दीन, आठवां नाम पाक पतन बाबा फरीदुद्दीन, नौवां नाम बाबा गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, पाक फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। अब इसके अंदर बायज़ीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जुबान खोलने के लिए तुम्हारे बाप ने मना किया है। तुम अपने बाप की नहीं मानते तो हमारी क्या मानते? वो तुम्हारे बाप होंगे। तेरे बाप नहीं है नजीर हुसैन देहलवी? नहीं। तो फिर तुम्हारा ताल्लुक क्या है? काफिर हुआ फिर? नजीर हुसैन देहलवी काफिर बोल दे एक बार। अगर उसने ऐसा लिखा है तो काफिर है। ये इबारत लिखने के की बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर उसने ऐसा लिखा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात तो सुनागा जाहिल। अगर उसने ऐसा लिखा है कि ये अल्फाज अदा करने के बाद बायज़ीद गुस्तामी अगर मुसलमान है तो उन्हें मुसलमान कहने वाला भी काफिर। अरे तुम आगे चेंज कर रहे हो। चलो भाई, इसने बायज़ीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह को काफिर बोला, आपने सुना? हाँ बिल्कुल सुना।
सुना ना? हाँ बिल्कुल सुना है। बायजीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पे ये देखो उम्मत का इजमा, मुहद्दिस का इजमा, मैं पढ़ने लगा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? अल्लामा जलालुद्दीन सुय्यती रहमतुल्लाह भारत की बात कर रहा हूँ मैं, जाहिल इंसान। वो भारत तो तुझे साबित करनी है ना इजमा से। किताब तेरी है ना, कश्मीर मेरी कौन सी है? किसकी लिखी हुई है? एक मिनट, किसकी लिखी हुई है? तस्कीरुल औलिया और एक कश्मीर मजदूर किसकी है? किसकी? तू बता किसकी लिखी हुई है? तो मानते हो ना, तुम नहीं मानते हो? जाहिल के बच्चे, जब तुझे नाम मुसन्निफ का नहीं मालूम है तू इबारत कैसे करेगा? तुम मानते हो ना? कौन सा मुसन्निफ है, नाम बताना। मुसन्निफ का नाम बताओ, कौन है? मुझे इसका नाम नहीं मालूम ना। तुम तो क्या फिर आप बच्चे तो क्या तहकीक करके आया? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना इल्म मनवाने से पहले आप तस्दीक करो, अच्छे से पढ़ाई करो। आप सुनो, आगे सुनो भाई। नहीं, मुसन्निफ का नाम पूछेंगे, फिर छब्बीस के वो पूछेंगे, रघु भाई क्लियर पड़ेगी करो इन लोगों का। अच्छा, मैं इससे एक चीज पूछना चाहता हूँ। ये कहता है कि मैं किसी इमाम की बात को नहीं मानता। ये किताब के बारे में तुझे आज की तारीख में किसने बताया? हाँ, तूने खुद तहकीक की है? किसकी? हाँ बिल्कुल, बताओ इसके बारे में। आपको किसने बताया स्कूल के बारे में, किताब के बारे में? तुझे बुखारी की हदीस के बारे में, कुरान की आयतों के बारे में आज की तारीख में किसने बताया? इमामों ने। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के जो इमाम है वो तेरे लिए मोतबर है, और जो पुराने इमाम मुहद्दिस चले गए वो तेरे लिए मोतबर नहीं है। जो हक बात बताए अच्छा, उनकी बात कबूल करने का हुक्म है। जो गलत बात बताए, एक मिनट, उनकी बात कबूल करने का हक नहीं है। सुन। हक बात तो शैतान भी बताता है। तो शैतान की बात मानने का इनकार किया है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि हक बात तो शैतान भी बताता है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि शैतान से दूर रहो। हाँ, तो शैतान की बात को बात को तो मैं क्या बताऊँ? बुखारी को हदीस को पढ़। अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? तो वो शैतान ने उसने बात हक कही। कौन सी हदीस है? सही बुखारी का हदीस है, आखिरी कुर्सी का वजह शैतान। अबे हक कही, लेकिन बात अमल नहीं किया जाएगा। तो हदीस पूरी बात, हदीस पूरी पर, उसकी बात पर, उसके हक बात पर अमल नहीं किया जाएगा। उसके हक बात तो पहले से अमल कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर शैतान के अल्लाह एक है, तो हम भी तो पहले से मानते हैं। जो ये बुजुर्ग हैं जो सही बात बताए उन पर अमल करो, जो ना बताओ। इसको दो खामोश करो। एक मिनट। इसने कहा कि अगर कोई हक बात बताए तो उस पर अमल करो। तो हक बात अगर कोई बताए तो उस पर अमल करने के लिए तुम्हारी तहकीक मजबूत होनी चाहिए ना, तुम्हारा इल्म मजबूत होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इसने बोला कि शैतान ने हक बात बताई, तो शैतान ने ये कहा कि अल्लाह एक है, तो वो तो हमें पहले से मालूम है, तो उसने हक बताया कहा? सही बात है, हकीकत है। तो इसने बोला कि आज के इमाम ने इसको हक बात बताई कि ये लिखा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि बायजीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बोला है कि मेरा कयामत में मेरा झंडा अल्लाह के रसूल के झंडे से ऊपर इनकार कर देना। ये तो झंडे को मानते ही नहीं है। तुम तो झंडे को मानते ही नहीं हो गए। तुम तो झंडे को मानते कर देना। झंडे को मानते हो तुम? झंडे को मानते हो या ना मानते हो, तेरा फैसला नहीं है। झंडे को मानते इकरार कर दे। मैं किताब को नहीं मानता तू, जब तक वो किताब को नहीं मानते, जब तक उस किताब को और उसके मुसन्निफ के नाम को और इस किताब के ऊपर तो इजमा नहीं दिखाएगा आलिमों का, मैं कैसे मान लूंगा? तो कशिन तुम्हारी किताब नहीं है ना, किसने लिखी है किताब वो? अरे किसी ने भी लिखी, लेकिन तुम उस किताब को मानते हो ना? यार अजीब आदमी है तू। किसी पेश कर देगा? आला हज़रत के बारे में बताया, एक मिनट इनकार कर देना। जब तक तू दिखाएगा नहीं मैं कैसे बोलूँ इनकार करूँ भाई? ये दिखाएगा नहीं। उस किताब पर मुहद्दिस का इजमा दिखा कि ये किताब उन्हीं की है। हाँ, जैसे बुखारी पे मैंने तुझे इजमा दिखाया, मुस्लिम पर इजमा दिखाया, पर इजमा दिखाया, और इजमा नहीं है ना। मैं ऐसी गैर मोतबर किताब को मानता ही नहीं। अच्छा, मतलब तुम नहीं मानते? नहीं मानता, मैं ऐसी गैर मोतबर किताब को मानता ही नहीं। जिसने लिखी या नहीं लिखी मुझे नहीं मालूम, तो कुरान हदीस से आके मेरे से बात कर, मुहद्दिस के इजमे पे बात कर। बिल्कुल सही बात है। ये किताबें तो किसने लिखी? तो तुम्हारे इल्जाम डाल हमारे बुजुर्ग ने दिखा किया है। हमारे अल्लाह बोल रहा था, मैं तो मुस्लिम शरीफ में हदीस है जी जी, एक शादी जो है वैदियत की हालत में ऐसे हो गए, उन्होंने ये कह दिया मैं तेरा खुदा तू मेरा बंदा, तो क्या फतवा लगाएगा तू? अच्छा, जरा
मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि वो जोश में इतना खुश हो गए, वो वैदियत में इतना खुश हो गए, उन्होंने ये कह दिया कि मैं तेरा खुदा, तू मेरा बंदा। खुशी की शिद्दत में जुबान लड़खड़ा गई। हाँ, तो खुशी की शिद्दत में जुबान लड़े उसको फतवा नहीं लगेगा। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है कि आप ही खुशी जमशेद भाई, तुझे साबित करना है ना। जमशेद भाई, हाँ, वैदियत की हालत में जब कोई होता है तो उसको कुफर का फतवा नहीं लगता। अगर कुफर का फतवा लगाना हो तो इस मुस्लिम शरीफ की हदीस पे, इस इबारत पे भी कुफर का फतवा लगाएगा। पर खुशी ये तो इतनी बड़ी बात है। हाँ, तो ये इबारत पढ़ के बताना। मेरे सवाल पूछा जा रहा था, सवाल पूछा जा रहा था, तो इसकी पूरी करना कौन सा वजह तारी था रऊफ भाई? हाँ जी। कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने, जी ठीक है ना, जी जी, सहाबा ने जितने सहाबी गुजरे और जितने ताबई गुजरे, तो अल्लामा अल-फसानी रहमतुल्लाह ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है अपनी किताब में कि अगर तुम्हारे पास 100 दलील है जी जी, और किसी जाहिल के पास एक दलील है तो वो तुम्हारी 100 दलीलों को रद्द करेगा। इससे बेहतर जाहिल से बहस ही ना करो। सही बात है, हकीकत तो है। जाहिल को एक ही बात समझा रहे ना, वहाँ पर खुशी की शिद्दत से जुबान लड़खड़ा गई थी। यहाँ पर भाई लोग सवाल हो रहा है कि सारे पैगंबर आपकी जिंदगी नीचे होंगे। अबे तो जाहिल के बच्चे, मैं वही तो तुझसे पूछा ये किताब लिखी किसने? मैं तो इस इबारत को मानता ही नहीं। अच्छा, अब तुमने क्या कहना कि इस बारे तो मानते नहीं। हाँ, तो मुझे मैंने तुझे आला का फतवा पेश किया ना, बोल रहा हूँ कि बहुत सी मोतबर किताबों में गैर मोतबर इबारतें लिखी है। किसकी रसूलुल्लाह का हवाला दिया है? जमशेद भाई, अगर तू एक बाप की हलाली औलाद है तो फतावा रिज़विया में चिश्ती रसूलुल्लाह दिखा दे। हरामी का बच्चा होगा, सुन, हरामी का बच्चा होगा, का हवाला दिखाऊंगा, का हवाला वही देखो ये उधर आप मौजू घूम रहे हैं आपके। हाँ, बिल्कुल सही बात है, मैं सुन रहा हूँ। अब मैं चिश्ती रसूलुल्लाह का जवाब दे देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि ये जो इबारत है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये इबारत सिरे से गलत है। सना सनाबिल के अंदर इस इबारत का रद्द किया गया है। उसके 300 से 400 चुप कर, मुँह बंद कर। 300 से 400 आलिम ने इस इबारत को गलत बताया। उसको किसी वजह क्या सुनो, क्योंकि चिश्ती नाम ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं रखा था। चिश्ती नाम ख्वाजा गरीब नवाज के बाद बना और ख्वाजा गरीब नवाज ने यहाँ पर ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह का लफ्ज इस्तेमाल किया। तो चिश्ती तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी अपने आप को कहा ही नहीं। अच्छा, तो ये इबारत उसी, ये तो आला हज़रत का फतवा है ना। बहुत सी मोतबर किताब में गैर मोतबर इबारत अगर तुमको मिले तो पेश करने वाले से उस पर इजमा मांगो। तो सनाबिल का हवाला फतावा रज़विया में क्यों लिखा आला हज़रत ने कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में ये किताब मकबूल है, जबकि चिश्ती मैंने तुझसे वही पूछा कि सना सनाबिल के बारे में अगर फतावा रिज़विया में लिखा है, अगर तू एक बात की हलाली औलाद है तो दिखा दे। तो मैं अपना रुजू करूंगा, मेरे भाई तौबा करूंगा। हाँ, तो दिखा है, कौन सी जिल्द में लिखा है? तो मैं उसको कौन सी जिल्द में लिखा है दे दूंगा। मैं मेरी बात सुन, अगर उसमें ये लिखा है सना सनाबिल की किताब की ये इबारत दुरुस्त है चिश्ती रसूलुल्लाह की, ठीक है ना, तो मैं रुजू करूंगा, नहीं तो तू हरामी का बच्चा होगा। मैं तुझे सना सनाबिल का हवाला मैं रुजू कर। मैंने तुझे कितने अच्छे से समझाया। मैंने शरीफ सना सनाबिल का हवाला दिया है कि सुनो बताऊँ भाई, अभी मैंने इसको बुखारी का हवाला दिया कि बुखारी की किताब हमारे लिए मोतबर है, लेकिन अगर शिया जो उसको दिखाता है बुखारी अपने इरादे में छपी है तो हम उसको नहीं मानते हैं। अब ये कह रहा सना सनाबिल की जो इबारत आला हज़रत ने लिखी है कि ये किताब मोतबर है, लेकिन आगे आला हज़रत ने ये भी लिखा है कि बहुत सी मोतबर किताबों में गैर इबारतें भी आई हैं, उसके ऊपर इजमा दिखाओ और उसको सही साबित करने जो दलील पेश करे उससे मांगो। इसका हवाला तुम्हारे रोहानी अब्बा जान ने दिया। तुम्हारे रोहानी अब्बा जान 10 साल पहले इसका दिखा कर रहा है वीडियो मेरे पास। दुनिया वहाबियत में किसी माँ ने ऐसा हलाली बच्चा नहीं पैदा किया जो आके हमसे उसूल से बात करे। अच्छा, जो उसको अभी तुमने अभी जितनी भी बातें की है ना वो सब गैर जाहिलाना बातें हैं, वो आवाम सुन के फैसला कर लेगी।
अच्छा बिल्कुल इतना बता तू रहे कह रहा है जो तू कह रहा है अल्लाह का दिफा कर रहा है वो हलाल है हरामी है। तो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा तेरे नसीर हुसैन देलवी ने किया, वो भी हरामी है, मैं क्या कह रहा हूँ, वो भी हरामी है। अल्लाह का जो दिफा कर रहा है माशाअल्लाह, वो हरामी है। माशाअल्लाह इसमें मान लिया नसीर हुसैन देलवी ने जो निकाला लिखा है कि बिल्कुल कोई सही भी बात। चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से जुबान खोलने से पहले आखिरत की फिक्र कर लेना। ओ शाबाश तो भाई। वो भी इकरार नहीं करता तू, शाबाश इकरार भाई। नहीं हरामी है, करता खाली शाबाश भाई। अरे मैं तुझे तेरे रूहानी अब्बा जाना होती के लिए भेजूंगा जो 10 साल पहले उसका दिफा कर रहे हैं। मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, मैं तुझे क्या कह रहा हूँ, अगर मैं वीडियो में अरे शाबाश भाई, सुनो मेरी बात। शाबाश भाई, ओ शाबाश भाई, शाबाश भाई। नसीर हुसैन देलवी को हरामी मान लिया क्योंकि उसने भी इस ताल्लुक से लिखा है, तो वो भी हरामी साबित हो गया। माशाअल्लाह पहले नसीर हुसैन देलवी को हरामी साबित करवा लिया। अब रऊफ भाई जी जी, कौन बोला है? हाँ बिल्कुल सही, कौन बोला मैं तुझे पेश करता हूँ मैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक, मैंने तो नहीं बोला कि मेरे आगे हरामी है, मैंने तो नहीं बोला। मुझे तो कहा उसका दिफा कर हरामी है। तेरे नसीर हुसैन देलवी को बोला, तेरे नसीर हुसैन देलवी को, शाबाश भाई मेरी तेरे बात नसीर हुसैन देलवी को बोला। तेरा अब्बा जान दिफा कर हरामी है। शाबाश भाई मेरी बात सुने आप। सुन, ओ शाबाश तो ये जो भाई, जाहिलाना बातें कर रहा है ना, ये सिर्फ जिद्दोजहद है तेरी। ओ शाबाश भाई, जी मेरी बात सुने आप। अरे शाबाश भाई, भाई जरा सुनो तो जरा, ओ शाबाश भाई। जो इस इबारत से दिफा कर रहे हैं चाहे वो हलाल है। मैं अरे शाबाश भाई, बात सुनना। रुको, मैं इसको काफी साबित करूंगा अभी। हाँ वो तो इन्होंने स्टार्टिंग में करी है, 2-3 हरकतें तो। ना सुनो, 2 मिनट में साबित करूंगा, 2 मिनट। मुझे ये अगर ये फोन काट गया तो समझ लेना पक्का हरामी है। मुझे ये कुरान और हदीस से वजू के फर्ज वाजिब सुन्नत बिना तहकीक बिना इजमा अभी बताएगा। अगर इसका हुसूल ही नहीं होगा तो ये नमाज पढ़ेगा तो ये काफी पहले किरा तो बजाना वाला नहीं है, इससे साबित बात करो। में करेंगे। साबित करो शाबाश भाई। तो मैं दो तरह का भेजू, अगर तूने नहीं साबित किया, अगर तूने नहीं साबित किया गुस्ल के फर्ज वाजिब सुन्नत तो खुदा की कसम तो हरामी की औलाद साबित होगा। पहले किससे मैंने अपने इमाम का हवाला दे दिया। ये क्या कर रहे हैं कि एक मौजू में उनका पूरा क्लियर हो नहीं पा रहा, दूसरे मौजू में हाथ डाल रहे हैं। अरे इसकी औकात नहीं है, इसके मोहम्मद नहीं आप टिक नहीं रहे ना हजरत। मैं देखो दोनों, मैं वन साइड बात नहीं करूँगा, मैं दोनों साइड से हूँ। मैं ईमानदारी से आप तो अपना इल्म मनवाने वाली बात कर रहे हो। किससे सुनने पर बात कर रहा हूँ ना। नहीं आपका मौजू कोई टिक ही नहीं रहा ना। अब आप कभी तो वादे शुरू हुए, कभी वादे शुरू हुए। नहीं आपकी शुरुआत कभी हुई जी भाई। तुम्हारा ये काफिर हो गया, यानी तुम्हारा समझा गया। मैंने तो मांगने की कोशिश कर रहे हो। अरे भागने की शुरू। सुनो, मैंने इससे तफसीर के बारे में पूछा, इसने तफसीर का इनकार किया। बिल्कुल सुनो, भाई अजीज गुस्तामी के ताल्लुक से मैंने इससे इजमा मांगा, हवाला मांगा, वहाँ से भागा। चिश्ती रसूलुल्लाह के ताल्लुक से मैंने आला हज़रत का फतवा पेश कर दिया। हमारे इमाम ने कहा इतना रसूलुल्लाह का हवाला दिफा कर रहे हैं जो तेरे रूहानी अब्बा जान, वो सबकी तो काफिर है। हाँ सुन मेरी बात, चिश्ती रसूलुल्लाह का जो दिफा कर रहे हैं मेरे आलिम, तेरा कहना वो क्या बोल रहे हैं उसमें? वो काफिर है। वो क्या बोल रहे हैं उसमें? अब तो ध्यान करना कि हरामी हरामी है, काफिर है ना। इसकी औलाद तो बता तो सही क्या बोल रहे हैं उसमें? किसी पर भी हम सही बता रहा हूँ, हवाला देंगे के लिए भेजेंगे तेरे रूहानी अब्बा जान। मैं तेरे रूहानी अब्बा की नहीं भेजूंगा, मैं तेरे को नसीर हुसैन देलवी की नहीं भेजूंगा, वो भी काफिर है। वो तो उसमें तुम्हारे लिए मतलब वो तुम्हारे लिए मतलब बोलेगा। अब इसलिए नहीं, तूने अपने खुद इसके ऑडियो में बोल दिया है मैं काफिर है। अच्छा मैंने बोला ऐसा जमशेद भाई, अब तक की इस ऑडियो क्लिप के अंदर बहुत कुछ वाज़ेह हो चुका है, इसलिए इसको यहीं पर ही अगर पेंड कर दिया जाए तो बेहतर होगा। नहीं रऊफ भाई सुनो, इसने इस ऑडियो के अंदर ये बोला है कि रऊफ भाई तुम गवाह हो, इसने खुद बोला है नसीर हुसैन देलवी काफिर है। बिल्कुल ठीक है। अगर उसने इस औलिया के बारे में लिखा है, बाजिद गुस्तानी के बारे में कि वो अल्लाह के वली है, तो वो काफिर है, इसने खुद बोला है। मैंने क्या कहा? सुनो, अब मैं खुद जमशेद अली कादरी चैलेंज करता है, मसलक के अहले हदीस के इदारे में खुद जाऊंगा
और इसके खिलाफ पुत्र का फतवा लेके आऊंगा जब तक तौबा नहीं करेगा। अब मैं खुद जाकर के इसी ऑडियो के साथ लगा तो पहले अपना अब्बाओं के बारे में तो बता दो, उसको दिखा कर तेरी औकात नहीं है बे जाहिल, तेरी औकात नहीं है। मैं पेश करूंगा ना, अगर ना पेश करता तो अरे जनाब आप टिक नहीं रहे ना, आप टिक नहीं रहे, आप टिक ही नहीं रहे, आप कहीं टिक ही नहीं रहे ना, आप कभी कहाँ से, अभी तो आपकी गाड़ी हवा में थी, हवा भी सरसरा गाड़ी थी, अभी आपकी गाड़ी हवा में थी, जिससे बात कर रहा है तफसीर पर आपकी गाड़ी हवा में हुई थी आसमान में, जवाब दे चुका हूँ मैं। सुनो तो फतवा तो लगा था कम से कम अपने आलिमों पे, जो तेरे आलिम बदल दिफा कर रहे हैं। अरे वो दिफा नहीं कर रहे, वो क्या बोल रहे हैं? अगर मैं साबित दिफा नहीं कर रहा तो मैं रुजू करूँगा पक्का। एक मिनट रुक जा। 10 साल पहले अगर कोई शख्स काफिर है और उसने कल कलमा पढ़ लिया तो उसको काफिर बोलेगा? तो काफिर मान रहा है ना तू? नहीं, मैं अब तुझसे क्या सवाल कर रहा हूँ, अगर 10 साल पहले कोई काफिर है और उसने बाद में रुजू करके कलमा पढ़ लिया तो फिर भी उसको तू काफिर बोलेगा? तो फिर काफिर मान रहे ना तू? तो जाहिल के बच्चे सुन, 2014 में सुन ले, 2014 में मुहद्दिस का तमाम आलिमों का इजमा हुआ। अच्छा, इस इबारत को देखिए ऐसा है रहू भाई, बात यहाँ पर ये होती है कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये 1 नंबर का अव्वल दर्जे का जाहिल है। बिल्कुल सही बात है। तो जब आला हजरत ने हमें पहले ही बता दिया कि देखो मोतबर किताबों के अंदर गैर मोतबर इबारतें मौजूद हैं, जैसे बहुत दर्जनों इबारत मौजूद है, एक नहीं दर्जनों। सही है। तो इस बात को इसके नज़ीर हुसैन देहलवी भी जानते थे, उसने एक रिसाला पास किया था, रिसाला लिखा था, उसको ये पता लग गया था कि कुछ लोग वलियों के ताल्लुक से गलत बोलते हैं। बिल्कुल तो सही बात। वो रिसाला एक मुनाजरा हुआ था, गुस्ताख कौन, उस मुनाजरे में हमारे आलिम ने वो रिसाला दिखाया था, तो इसका आलिम उठ के भाग गया था क्योंकि उसने चिश्ती रसूलुल्लाह की इबारत उठाई थी। तो उन्होंने पहले उसका जवाब दिया, जवाब ये दिया था कि जैसे मुस्लिम शरीफ की हदीस के अंदर है, एक शख्स जो है इतना खुश हो गया कि उसने अल्लाह के ताल्लुक से ये कह दिया कि मैं तेरा खुदा तू मेरा बंदा, तो वो वहदियत की हालत में हो गया। ठीक है, अब ये जो इबारत है इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ख्वाजा गरीब नवाज वहदियत की हालत में बैठे थे। एक शख्स आया तो उसने कहा कि हुजूर मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूँ। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि कलमा पढ़। तो उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ख्वाजा गरीब नवाज ने ये कहा कि नहीं, ये पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। उसने पढ़ दिया। जब पढ़ दिया तो ख्वाजा गरीब नवाज जब वहदियत की हालत से बाहर आए तो आपने कहा हक वही है जो तूने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तेरा इम्तिहान लेने के लिए मैंने तुझे ये पढ़वाया। ठीक है, तो रुजू तो इसी इबारत में हो गई कि ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि हक तो वही है। लेकिन इस इबारत के ताल्लुक से जब हमारे आलिमों का इजमा हुआ, इकट्ठा हुए सब, और उसके बाद जब आला हजरत की इस किताब को देखा तो उसके बाद इस पर इजमा जब हुआ तो देखा कि ये इबारत गलत मनसूख की गई, इसकी तहकीक की गई, क्योंकि चिश्ती जो लकब है ये ख्वाजा गरीब नवाज ने नहीं रखा था, ये बाद में उनके खलीफाओं ने रखा था। सही बात है। ठीक है, तो चिश्ती तो ख्वाजा गरीब नवाज ने जब रखा नहीं तो यहाँ चिश्ती रसूलुल्लाह कैसे पढ़वा देंगे? अब यही इबारत इसी किताब के अंदर सबा सनाबिल के अंदर इसी इबारत का दूसरा डेफिनेशन मिलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह शिबली रसूलुल्लाह। तो एक इबारत दो जगह और सेम इबारत, तो ये दोनों इबारत को खारिज किया गया। तो जब इस किताब को देखा गया तो इस किताब को जब देखा गया तो पता ये लगा कि इसमें से कुछ एडिशन जो है बद मजहब छाप रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमने वो रिसाला ऐलानिया हुआ 2014 में, ऐलानिया रिसाला हुआ कि इस इबारत को, ये इबारत हमारी नहीं है, बात खत्म हो गई। अब जब अब कल को कोई बुखारी की एक जिल्द ला के मुझे दे दे कि देख भाई तुम्हारी बुखारी है ना, इसमें ये लिखा हुआ है, तो उसमें कोई अपनी तरफ से लिख दे तो उस पर तहकीक होगी ना। बिल्कुल तहकीक होगी। तो इन जाहिलों की जमात को, इनके जो मौलवी है ना, 2 कौड़ी के साले जो घूम रहे हैं, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, वो इनको ऐसी 2-4 इबारतें दे देते हैं, बस इसी पे बहस करते रहो। हजरत इसमें अभी बीच में अभी परसों के एक हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को। अब एक चीज सुनिए, इसने ये कहा मैं तफसीर को नहीं मानता, मैंने इसको चैलेंज ठोका कि अरकाने नमाज कुरान और हदीस से, जिसमें रकात शामिल होनी चाहिए, वाजिब और सुन्नत शामिल होनी चाहिए, हदीस और कुरान से दिखा। इसका बाप मर जाएगा ये। फिर ये कह रहा नहीं इजमा पे, फिर इजमा पे आ गया, फिर ये इजमा पे कूद गया, और जबकि इजमा का इसने इनकार किया था, इनकार करता है। आप देखो कितना बड़ा जाहिल पाए दर्जे का। अब फिर उसके बाद ये आया बायजीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह पे। बायजीद गुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के मोतबर
आलिम दीन और वली हैं अल्लाह के। अरे ये साला घामाड़े जाहिल एक नंबर का, ठीक है। माज़अल्लाह। बायजीद गुस्तामी को इस मरदूद शैतान ने काफिर बोला, अस्तगफिरुल्लाह, लानत हो इसके ऊपर अल्लाह और उसके रसूल की, बेशुमार लानत हो फरिश्तों की। अल्लाह तो ठीक है। तो ऐसे जाहिलों से बहस करके क्या फायदा होता है रऊफ भाई? ऐसे जाहिलों से बहस करके कोई फायदा नहीं होता। बस आवाम को हमें ये दिखाना है कि जितनी आवाम हमें सुन रही है उनसे हमारी मोतबर ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों से बचें और ऐसे लोगों के सोहबत में ना रहें, ऐसे लोगों से बातचीत ना करें आप दीन के ताल्लुक से, और ऐसे लोगों से अपने दामन को बचा के रखें। बस इसीलिए हम इसको रिकॉर्ड करके आवाम तक पहुंचा देते हैं। ऐसे जाहिल लोग दुनिया में पैदा हो चुके हैं। हाँ नहीं सही है ब्रदर, इससे क्या लोगों की इस्लाह होगी, ऐसे लोगों से बचा जाए। ठीक है। देखिए सही बात। हाँ, तो ये इन लोगों की औकात ये है कि बस जहाँ पे हम फंसते जाएं वहां से हम भागते जाएं। नहीं हजरत माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको जितने भी सुन्नी उलमा हैं, अल्लाह ताला सुन्नी हनफी बरेलवी, आप जितने भी खिदमत गुजार हो, अल्लाह ताला आपसे काम ले रहा है। बस अल्लाह ताला तो आगे से रऊफ भाई इससे ना आप बहस करना, ना इसकी कोई बात को आप रिकॉर्ड करना, ना कुछ नहीं। इसको आप ब्लॉग पे डालो। इसको नंबर ही ब्लॉक डाल दिया मैंने हजरत। हाँ, ये इतना बड़ा कहने से पहले ब्लॉक डाल दिया मैंने। इतना बड़ा पाए का झंडू चमन परास है, ये जाहिल है कि इसने अपने नसीर हुसैन दहलवी को काफिर कह दिया, तो और क्या कह सकता। तो बना चले। असल में क्या है हजरत, मैं इससे अभी तक जो बात कर रहा था ना, मैंने अभी इससे जो प्लम्बरी के ताल्लुक से मैंने इसको डायरेक्टली तो क्लियर करा नहीं था मैंने इसको। अरे भाई एक चीज मुझे बताओ कि ये किताब के बारे में, बुखारी के बारे में, मुस्लिम के बारे में तुझे वजू के फराइज नहीं आते, तुझे गुस्ल के फराइज नहीं आते, गुस्ल के वाजिब तुझे नहीं मालूम, तुझे ये नहीं पता कि मैं पाक साफ कैसे होऊंगा, और तू बुखारी और कुरान की आयत और मुस्लिम की हदीस हमारे पास लेकर के आ रहा है। ठीक, तो तुझे ये रट्टा रटाया तोता दिया किसने? तो तेरी नजर में आज का जो तोता तुझे रटवा रहा है वो मोतबर हो गया, और जो पुराने बुजुर्ग और पुराने अल्लाह के वली गुजरे वो तेरे लिए काफिर हो गए। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या करोगे ऐसे जाहिलों का यार? अरे जाहिल एक नंबर का। इसको मैंने अभी बीच के टाइम पे मैंने इसके प्लम्बरी के बारे में मैंने डायरेक्ट नाम नहीं। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, हनीफ कुरैशी हमारा आलिम था, हाँ, अहले सुन्नत वल जमात का मोतबर मुफ्ती था। हाँ, तो हनीफ कुरैशी की रावजियत सामने आ गई, उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लग गया। अब हनीफ कुरैशी 10 साल पहले आला हजरत में था। अब कोई ये कहे कि 10 साल पहले वो मुसलमान था, अब तुम्हारी नजर में काफिर, अब काफिर की वजह हमारे उलमा ने दे दी ना हमें। अब कल को वो रुजू कर लेगा, तौबा कर लेगा, और मसले की आला हजरत दोबारा आ जाएगा, तौबा कर लेगा, तो उसके बाद फिर वो मुसलमान हो जाएगा, फिर उसके ऊपर से कुफ्र का फतवा हट जाएगा। सही बात है। तो ये देखिए, इंसान जब तक दुनिया में है, कब उसकी जुबान से क्या निकले, ठीक है, और कब वो अपने तकब्बुर में वो बेपरवाह हो जाए, वो कोई नहीं कह सकता है। तो इसीलिए तो आला हजरत ने फरमा दिया ना, इसीलिए आला हजरत ने फरमा दिया कि दीन और मजहब है, ठीक है ना, मेरी कुतुब से जाहिर है, इसे मजबूती से थाम लेना। ठीक है। तो जब हमको कोई ऐसा आलिम या कोई ऐसा नजर आएगा तो हम आला हजरत की तरफ रुजू करेंगे, उधर देखेंगे क्या है क्या नहीं, और यही हमारे उलमा करते हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारे उलमा तो इतने निडर हैं कि अगर किसी की जुबान से कुछ गलत निकलता है जरा सा भी, तो उसकी पकड़ करते हैं। बिल्कुल। और इनके जाहिल उलमा ऐसे हैं कि अगर उसकी जुबान से कुछ गलत निकलेगा ना तो उसका और डिफेंस करते हैं। तो डिफेंस तो वो जब करेंगे ना वो ठीक है ना, वो तो खुद बकवास करते हैं। तो चलें, ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पर डाल देता हूँ, इसका नंबर दे देना। वो आपके पास भी क्लिप आ रही है, मैंने भेज दिया आपको। चले, मेरी रिकॉर्डिंग साफ हुई होगी ना। चलें, ठीक है, ठीक। अस्सलाम वालेकुम।